Hello everyone, welcome back to another video. My name is Prashant and I'm sharing my ongoing learning journey. In this video, I would be talking about yet another question which is striking in my mind, and that is related to program. From past few days, I've been learning about how does a keyboard work. I've still not fully understood about the working of it, but I have understood that there is a microcontroller inside a keyboard, and that microcontroller has a ROM inside it that is called as read-only memory, and we have to install a program in that ROM. So the next question which is striking my mind is that what is a program? How does a set of instructions written in words are converted into signals? Because microcontroller can only understand signals. So how does those words type one, print one, how does that converts into signals? This is something which was striking in my mind, and I would be discussing this in the video. So while learning about the working of the keyboard, I came to know that a keyboard has a microcontroller inside it, and that microcontroller has a ROM. This ROM, read-only memory, is very important, and the program is inbuilt in this ROM. Now, what is a program? That is the main thing. How do you program a ROM? And how does a program gets installed in a ROM? What exactly is a program? Because program to me, for a layman person, is a set of instructions which you type on the keyboard. So how does that set of instructions which you type on the keyboard gets into converted into electrical signal? Because what we have understood is till now that computer only understand the ones or zeros, or you may say that they only understand signal, electrical signal, either it is off or on. This is what it understands, either off or on. So how does the set of instructions which are written on English, ये इंग्लिश में जो लिखी इंस्ट्रक्शन प्रिंट एल इंट एफ ऐसे करके जो भी कमांड्स लिखी जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट होती है? बिकॉज प्रोग्राम जो आगे माइक्रो कंट्रोलर रन करेगा वो तो करेगा रन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है. अब ये प्रिंट एल या फिर ऐसे जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं वो कन्वर्ट कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल? सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, आई don't know I am correct or wrong, what I have understood is that the words which you are writing is itself is an electrical signal. जब आप कीबोर्ड में चीज़ें प्रेस करते हो, कुछ भी प्रिंट एफ, अब वो जो प्रिंट एफ है वो जो यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि यहाँ से सिग्नल पास हुआ, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था. इसकी प्रिंट एफ की मान लीजिए जो वैल्यू बाइनरी में होगी 1000110000 ऐसा कुछ करके. अब यहाँ से जब प्रेस किया तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही स्टोर हुआ है कंप्यूटर के अंदर. नाउ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो मेमोरी में हुआ है. जब आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो सेव हो जाता है. वो सेव कहाँ होता है? वो मेमोरी में जाके सेव हो गया. नाउ वो क्या सेव हुआ है? वो वर्ड्स वगैरह सेव नहीं है, वो सेव हुआ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने प्रेस किए थे. जब आपने कीबोर्ड में प्रेस किए थे, जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही थे. एंड दीज आर द सिग्नल्स. जब आप उन्हें कंपाइल करते हो या आगे रन करते हो तो जब आप उसको, यही जो है यहाँ से जब आपने प्रोग्राम मेमोरी में लिखा, इसी प्रोग्राम को आप कहाँ करते हो? पेस्ट कर देते हो रोम में, जो मैं समझाऊँ. और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जब इसको रोम में सेंड करते हैं या उस पर पेस्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो मेमोरी के जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे 100100 वो कॉपी पेस्ट होते हैं. अब रोम में जब वो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं तब जाके वो रोम आगे काम करती है. सो इट्स नॉट प्रिंट एफ या जो वर्ड्स वगैरह काम नहीं करते हैं. अब उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी अपने आप में से नहीं आता है. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वही होते हैं जो आप कीबोर्ड में प्रेस करते हो. और ज़रूरी नहीं है कि आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया हो. आप कई बार ये है कि पेन ड्राइव से लेते हो, कई बार आप इंटरनेट से डाउनलोड करते, कहीं से भी जब कुछ भी आपने डाउनलोड किया तो वो किसी ने तो लिखा होगा, किसी ने तो इनपुट किया होगा. तो वो इनपुट जब किया होगा तो वो यहीं से तो कीबोर्ड से ही एंटर किया होगा या किसी भी वे से एंटर हुआ होगा.
तो इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही मेमोरी में गए होंगे. सो दोज मेमोरी में जो सिग्नल्स होते हैं वही आगे जाते हैं. सो इट इज़ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच गेट्स ट्रांसफर्ड, जो कि हमें लगता है कि बस ये प्रिंट एफ है. तो दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज स्ट्राइकिंग इन माई माइंड दैट ये प्रोग्राम को रीड कैसे करता है. प्रोग्राम के में तो कंट्रोल है, फिर बाइनरी में आता है, पर बाइनरी को भी रीड कैसे करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें बोला जाता है कि कंप्यूटर ओनली रीड्स 101010, बट ओके 1010 इज एक तरीके से एक तरीका है बताने के लिए, बट ये 1010 थोड़ी रीड करता है. वो तो जो कंप्यूटर रीड करता है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीड करता है. 10 इज जस्ट ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट थिंग. इट कुड, बट ये दिस इज हाई वोल्टेज, दिस इज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज. अब ये हाई लो वोल्टेजेस को रीड करता है. सो अब वो प्रिंट एफ जब भी कभी लिखा होगा या आप लिखते हैं तो कीबोर्ड में जब टाइप करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आपकी मेमोरी कार्ड में या जो मेमोरी है आपकी हार्ड डिस्क है वहाँ पे स्टोर होता है. और आप जब भी उसे ट्रांसफ़र करते हो तो ये 1010 जो कहते हैं वो एक्चुअली 1010 नहीं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है. एक पैटर्न ऑफ एक पैटर्न होता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस का जो कि आगे फॉरवर्ड होता है, और उसी इलेक्ट्रिकल पैटर्न को वो आगे रीड करता है. और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वहाँ पे वो माइक्रो कंट्रोलर है. माइक्रो कंट्रोलर में जो आगे प्रोसेसर रीड करेगा वैल्यूज़ को, या फिर इनपुट से जो भी वैल्यू आएंगी जो रोम में जाएंगी, उससे जो वैल्यूज़ जो रीड होंगी वो होंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो अभी तक मुझे ये समझ आया है, एंड इससे काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें अभी समझ आने स्टार्ट हो गई हैं. सो अभी द नेक्स्ट थिंग वुड बी हाउ डज दिस वर्क. ये रोम कैसे कोऑर्डिनेट करता है प्रोसेसर के साथ, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह, ये अभी इन नेक्स्ट वीडियोस आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि मैंने क्या लर्न किया. इसमें भी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच आई हैव मिस्ड, इफ एनीथिंग new clarification which you want to add, please do so in the comment section. I'm here to learn new things. Please help me in doing so. Thank you very much.